ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं जनाब ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट पेपर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव इट्स फ्रॉम May June 17 पेपर 1-1। प्रूफ करना है हमें आइडेंटिटी को। तो फर्स्ट जो भी क्वेश्चन आता जा रहा है हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट इज डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड। ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। नाउ द फर्स्ट वी हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ करते वक्त हमें कॉम्प्लिकेटेड साइड पिक करके दूसरी साइड पर आना होता है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो द लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? हमें सिर्फ साइन नजर आ रहा है। तो सबको चेंज करना है, किसमें? साइन में लेकर आना है। सबको किसमें लेकर आना है? साइन में लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम। साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos theta, sin theta into 1 plus cos theta. So sin theta कैंसिल, 1 plus cos theta जब 1 plus cos theta से मल्टीप्लाई होगा तो 1 plus cos theta होल स्क्वायर। 1 plus cos theta कैंसिल, sin theta से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा। नाउ 1 plus cos theta होल स्क्वायर एक्सपेंड जब होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब आइए जनाब, as we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. So 1 plus this one is 2 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. 2 common, 1 plus cos theta divided by sin theta, 1 plus cos theta cancel, 2 over sin theta, and this we have to prove. Clear? Second, in the second part we have to solve the equation and we have to calculate all angles from 0 to 360 degrees. So the second part is, अब आप देखिए, the left hand side according to the first part is equals to 2 over sin theta equals to the right hand side is 3 over cos theta. Now cross multiplication, after the cross multiplication it will be sin theta over cos theta equals to 2 over 3, and sin over cos किसके इक्वल होता है? tan theta equals to 2 over 3. अब आइए, tan theta equals to 2 over 3, tan is positive, किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। add sugar to third quadrant, calculate the basic angle, tan inverse of 2 over 3. Basic angle is always positive and acute. Basic angle is always positive and acute. Tan inverse of 2 over 3. What is the answer? 33.6. 33.6 here, 33.6 here. Now we have to calculate the general angle from 0 to 360 degrees. चलना स्टार्ट किया जनाब 0 से। तो the first angle is 33.6 and the second angle is 180 plus 33.6. कितना हुआ? 3.6. These are the two results. Now, question number 2 is from May June 17, paper 1-1. The first part is sketch the graph of y equals to 2 cos x. Y equals to 2 cos x from minus pi to pi. करते हैं स्केच। माइनस पाई से लेकर पाई तक आपने स्केच करना है कर्व को।
How to sketch the curve from minus pi to pi? 2 cos x plus 0. कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स मेन एक्सेस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सेस। माइनस पाई से पाई मतलब 180 से माइनस 180 तक, या माइनस 180 से 180 तक। तो हियर इट इज 90 and here it is 180. Here it is minus 90 and here it is minus 180. Main axis is 0, amplitude is 2, so we have to go 2 above and 2 below. सबसे पहले पॉजिटिव साइड को हम स्केच करेंगे। कॉस का कर्व स्टार्ट होता है कहां से? मैक्सिमम से। मैक्सिमम एक्सेस मिनिमम, ये कॉस कर्व स्केच हो गया आधा। अब इसी साइकिल को लेकर आप आगे चलें। क्या है? मिनिमम एक्सेस मैक्सिमम एक्सेस minimum. So the cost curve is like this is the cost curve for part 1, right? Now, after that, is stating the coordinate of the point of intersection with y-axis. Y-axis को कहां से intersect कर रहा है जनाब? 2 से, तो 0,2, right? कोई confusion? आगे देखिएगा। The point PQ lie on the curve and have x coordinate 1/3, oh sorry, pi by 3 and pi. Point PQ lie on the curve and have x coordinate. जो x coordinate है वो pi by 3 है और pi है। Find the length of PQ correct to 1 decimal place. Find the value of PQ correct to 1 decimal place. Second part अब जरा सॉल्व कर रहे हैं। कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल्स टू 2 cos x। कहा गया दो कोऑर्डिनेट है, एक है x पाई बाय 3 और एक है x पाई। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिस इज p एंड दिस इज q। तो बेटा जरा पाई बाय 3 रखिए, आंसर क्या आ रहा है बताइए? कैलकुलेटर इन डिग्रीज, राइट? ओ सॉरी, रेडियंस। कैलकुलेटर इन रेडियंस, कैलकुलेटर इन रेडियंस, व्हाट इज द आंसर? 1.05। और पाई रखा तो क्या आंसर आ रहा है? -2। पाई रखा तो -2। 2 cos 2 cos pi by 3 is 1. Okay, 2 cos pi by 3 is 1. Now, अब आइए PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यस जोहेब, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस x2 minus x1 होल स्क्वायर। ओ लेवल मैथ्स में आप लोग बहुत बार कर चुके। सो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस pi minus pi by 3 whole square. So this one will be under root -2 -1 -3. -3 square is 9. 3 pi minus pi, 2 pi. 2 pi over 3. तो 4 pi over 9. Calculate कीजिएगा कैलकुलेटर से. What is the answer? We have to write the answer in 1 decimal, correct to 1 decimal place. 3.22. 3.22 is the result. Any confusion? Hopefully no. Yeah, students, the result is 3.65. The result is 3.65. Now, after that, in the third part, the line through PQ meets the x-axis at H and the y-axis at K. क्या कहा गया? कह रहे हैं PQ से एक लाइन जो पास कर रही है वो x-axis को H और y-axis को K से पास कर रही है। Let's say the line is this, H से x-axis को और K से y-axis को। Show that the value of small h is 5 pi over 9. 5 pi over 9 positive है, so it means the line is like this. This is h, here it is h comma 0 and here it is 0 comma k. आपसे कहा गया find the value of, means show that h is this and find the value of k. We have to calculate the value of h and k. We have to calculate the value of h and k. अब आप देखिए how to calculate the value of h and k.
और ये लाइन पी क्यू से पास कर रही है, तो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास मौजूद है जनाब पी और क्यू के। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट फर्स्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू विल बी y2 minus y1 over x2 minus x1. So it will be minus 3 divided by 2 pi over 3. So it will be minus, ये ऊपर पलटेगा तो 3 3 9 minus 9 over 2 pi. This is the gradient of PQ. This is the gradient of PQ. y2 minus y1 over x2 minus x1. Now, I'm using the second point Q से हम कैलकुलेट कर रहे हैं जरा इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय यूजिंग द फॉर्मूला y माइनस y1 जो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा इक्वल्स टू m x minus x1. So y minus y1 is minus 2, gradient is minus 9 over 2 pi, x minus x1 कितना है हमारे पास pi जनाब। अब आप देखिए we have to calculate the value of h. We have to calculate the value of h. 2 pi को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए 2 pi y। अच्छा, अगर हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो y क्या है इसमें जनाब? फॉर दिस इज h कॉमा 0, दिस इज h कॉमा 0, तो y क्या हो गया? 0 हो गया जी। एनी कंफ्यूजन? ना, अब आप देखिए y क्या हो गया? 0 हो गया। अगर y 0 हो गया तो ये क्या बचा? 2 इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2 पाई x माइनस पाई, 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई over minus 9 equals to x minus pi, and the value of x is pi minus 4 pi over 9. So the value of x is 5 pi over 9. The value of x is 5 pi over 9, which we have to prove. Which we have to prove. इसके बाद हमें k की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। For the value of k, it will be 0 comma k. It will be 0 comma k. अब आइए, अब क्या किया जाएगा? x को 0 रखा जाएगा किसमें? इस इक्वेशन में। So it will be y plus 2 equals to minus 9 over 2 pi. जब x को 0 रखा गया तो यहां क्या बचा? माइनस पाई, पाई एंड पाई कैंसिल आउट, y plus 2 is equals to plus 9 over 2, and here it is y is equals to 9 over 2 minus 2, and the final answer will be minus 5 upon plus 5 upon 5 upon 2. So this is the value of k. Are you clear? Any confusion? Hopefully no. Now question number 3. Question number 3 is we have to prove the identity is from May June 17 paper 1-2. The first part is I'm taking the left hand side. So in this 1 over cos theta, cos theta को तो हम चेंज कर नहीं सकते, tan को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta whole square. So now it will be by taking LCM, cos theta, this will be 1 minus sin theta. देखो होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे स्क्वायर अलग कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा लिखें या cos थीटा का होल स्क्वायर लिखें, द बोथ आर सेम। अब आइए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है जनाब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके अकॉर्डिंगली कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैंसिलेशन, क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, which we have to prove, right? सेकेंड पार्ट में इक्वेशन प्रूफ करनी है अब हमें। देखिएगा
In the second part, again, the left hand side is equals to 1 minus sine theta over 1 plus sine theta equals to 1 over 2. Cross multiplication 2 minus 2 sine theta equals to 1 plus sine theta. Sine theta plus 2 sine theta मिलकर क्या बने 3 sine theta equals to 2 minus 1 is 1. Can I say that sine theta is equals to 1 over 3? Sine is positive. कहां होगा फर्स्ट में और सेकंड में. बेसिक एंगल कैलकुलेट कीजिए साइन इनवर्स ऑफ 1 over 3. कैलकुलेटर इन डिग्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में डिग्रीज लिखे हुए हैं तो आंसर डिग्रीज में आना चाहिए. 19.5. 19.5. The first angle here, second angle here. General angle will be the first angle is 19.5 and the second angle is 180 minus 19.5. 160.5. These are the two results for a 6-mark question. Now, question number 5 is from May June 17, paper 1-3. Again, the first part is about proving something, but it's not an identity. It's an equation, right? It's an equation. Equation के लिए हमें क्या करना होगा? लेफ्ट राइट दोनों पर काम करना होगा. हमें प्रूफ करना है इक्वेशन को साइन और कॉस की फॉर्मेट में, तो हमें यहां से tan को हटाना होगा. तो tan को कैसे हटा सकते हैं हम? 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा. जी मोहम्मद, tan थीटा इज, ये बिल्कुल पक्का याद है आपको. हाँ, 2 sin थीटा ओवर कॉस थीटा. 2 sin थीटा ओवर कॉस थीटा. Now, cross multiplication, 2 sin theta cos theta plus cos square theta equals to 2 sin square theta plus 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta cancel. Cos square theta equals to 2 sin square theta, and this we have to prove. Clear? Now, in the second part, we have to solve up to 180 degrees, from 0 to 180 degrees. Start करते हैं जनाब. एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, दो फंक्शंस हैं, नहीं सॉल्व कर सकते. तो हमें क्या करना होगा? इसको सिंगल फंक्शन में लेकर आना होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 over 2. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 over 2, राइट? अब आप देखिए tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? प्लस माइनस अंडर रूट 1 over 2. tan थीटा प्लस और माइनस दोनों के साथ है, तो तमाम ही क्वाड्रेंट्स में आएगा. तमाम ही क्वाड्रेंट्स में आएगा, चारों क्वाड्रेंट्स में. अब व्हाट इज द बेसिक एंगल? बेसिक एंगल इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 upon 2. देखो, अब ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, हम प्लस लें कि माइनस लें, हमेशा बताया गया बेसिक एंगल हमेशा प्लस का ही होगा. तो आंसर क्या हुआ? 35.3 इज द बेसिक एंगल. एक एंगल यहां बना, एक एंगल यहां बना. आगे देखिएगा एंगल्स नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0 से लेकर 180. सिर्फ 180 तक जाना है, हाफ सर्कल कंप्लीट करना है. ठीक हो गया? तो जनाब पहला एंगल क्या आया हमारे पास? 35.3. और दूसरा एंगल क्या आया? 180 माइनस 35.3, 144.7. These are the results. Now, question number 6 is from February March 17, paper 1-2. क्वेश्चन दिया गया, फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए. हमें ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है. अब ये ए बन कैसे रहा है बच्चों? दो कर्व, एक y इक्वल टू tan x, एक y इक्वल टू tan x और एक y इक्वल टू cos x.
एक y इक्वल टू tan x और एक y इक्वल टू cos x। जनाब अब आप देखिए a किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एक कर्व y इक्वल टू tan x और दूसरा कर्व y इक्वल टू cos x इंटरसेक्ट कर रहे हैं a पर, और जहां पर दो लाइंस, दो कर्व, दो फंक्शंस इंटरसेक्ट करें, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है तो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट आ जाता है। ठीक हो गया। तो जनाब आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू tan x एंड हियर y इक्वल टू cos x, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया, tan x बराबर है cos x, राइट। दोनों y को, दोनों लेफ्ट साइड y इक्वल टू tan x को यहां पर रख दिया, तो tan x इक्वल टू cos x। एक tan लिखा हुआ, एक cos लिखा हुआ, सॉल्व तो हो नहीं सकता, सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो फिर tan को क्या लिखा जाएगा, साइन अपॉन cos। tan को लिखा जाएगा साइन x अपॉन cos x इक्वल्स टू cos x साइन x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को, अभी भी दो फंक्शन हैं, cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड पर ले आओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन की दो वैल्यूज बताओ, कैलकुलेटर से बता दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। 0.6 एंड minus 1.6 कोई और, minus 0 नहीं, 0.6 एंड माइनस 1.6। साइन की दो वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया जनाब। अब साइन पॉजिटिव, फर्स्ट वाले में तो साइन पॉजिटिव है, कहां होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा। यहां साइन नेगेटिव है, कहां होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। हमें कहां तक जाना है, 180 डिग्रीज तक, तो इसी पर काम करेंगे हम। बेसिक एंगल कैलकुलेट कीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 0.6, कैलकुलेटर इन रेडियंस, कैलकुलेटर इन रेडियंस। पाई लिखा हुआ है ना, तो रेडियंस में होगा 0.64 जनाब। तो पहला एंगल, अब आइए, पहला एंगल आया 0.64। इट मींस पहली जगह पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है जगह, 0.64। फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0.64, ए का एक्स कोऑर्डिनेट। अब आइए फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें बी का कोऑर्डिनेट फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब एक्स वाई दोनों कैलकुलेट करना है, एक्स वाई दोनों कैलकुलेट करता है। अब देखिएगा बच्चों, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व जब भी चलते हैं सिमेट्रिकल चलते हैं। आसान से मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं, सिमेट्रिकल मूवमेंट होती है। अब आप देखिए टेन का कर्व एक्स एक्सिस को कहां से टकरा रहा है, जीरो से। कहां से टकरा रहा है, कितनी आगे गया तो दूसरे कर्व को टकराया, 0.64। टेन का कर्व एक्स एक्सिस को फिर टकराया, कहां से, पाई से। वो पाई पर जीरो हुआ, यहां पर कितना पीछे होगा कि ये टकरा जाएगा, 0.64। फिर पीछे मूव करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मूवमेंट है ना कर्व्स की, सिमेट्रिकल मूवमेंट है। तो जीरो के बाद जितना टकराया, जीरो से पहले उतना ही टकराएगा, पाई से पहले उतना ही टकराएगा। तो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0.64। क्या आंसर आया, 2 पॉइंट, एक और बताओ डिजिट, 2.50। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। तो मैं रख रहा हूं y इक्वल्स, सॉरी, y इक्वल्स टू tan x। तो tan 2.50, क्या आंसर आया, माइनस -0.74, -0.7, माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि देखो वाई एक्सिस में हम कहाँ हैं, नेगेटिव साइड पर हैं। अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस वो रीचेक करे, गलत आ रहा होगा।
right? Okay, students, now question number 7 is of February March 16, paper 1-2. In the first part, solve the equation. Sin inverse 3x equals to this. ये सारी स्टोरीज आपको दे दी गई, राइट? अब आप देखिए क्या लिखा जा सकता है। 3x इक्वल्स टू साइन, अगर मैं कहूं साइन एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 1/2, तो x को मैं क्या लिखूंगा? साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और साइन इनवर्स जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। ऐसा ही है, तो यहां पर भी यही स्टोरी हुई है। साइन इनवर्स उधर जाएगा -1/3 पाई। जरा कैलकुलेट कीजिए साइन इनवर्स ऑफ -1/3 पाई, क्योंकि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें ओके नाउ दिस इज बेटा साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू -1/3 पाई। जब साइन इनवर्स राइट साइड पर आएगा तो साइन हो जाएगा, नॉट साइन इनवर्स। सो 3x इक्वल्स टू, ये क्या हुआ? साइन -π/3 -√3/2, और x की वैल्यू क्या आ गई जनाब? -√3/3×2 हमें एग्जैक्ट फॉर्म देना है तो हमने इसी फॉर्म में लिखना होगा, डेसिमल में नहीं लिखा जाएगा। पार्ट बी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन द इक्वेशन दिस। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 cos थीटा साइन थीटा -2 cos थीटा -sin थीटा +1 इक्वल टू 0। बच्चों, अगर 4 टर्म्स होती है ना, पहली 2 टर्म में से अलग कॉमन आता है, दूसरी 2 टर्म में से अलग कॉमन आता है। अगर 4 टर्म्स हो तो इस तरीके से कॉमन लिया जाएगा, राइट? तो पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos थीटा। क्या बचा इन द ब्रैकेट? साइन थीटा -1। दूसरी 2 टर्म में से -1, तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन ले लिया दोनों ब्रैकेट्स को। साइन थीटा -1 इन द ब्रैकेट 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। एक बार साइन थीटा इक्वल टू 1 और एक बार cos थीटा इक्वल टू 0 से 180 तक जाना है हमें। आपको बता चुके हैं -1, 1 और 0 पर कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। तो साइन वन कहाँ होता है? 90 डिग्रीज पर होता है। तो यहां से एंगल आया π/2। आगे मजीद जाएंगे नहीं क्योंकि हमें 180 पर रुक जाना है। अब यहां पर देखिए कॉज पॉजिटिव है, कहाँ होगा? फर्स्ट पे ऐड शुगर टू कॉफी, लास्ट पे, लास्ट तक तो जाना ही नहीं है। तो जनाब बिल्कुल जो बेसिक एंगल होगा वही हमारा आंसर होगा, कॉज इनवर्स ऑफ हाफ। कॉज इनवर्स ऑफ हाफ कैलकुलेटर इन रेडियंस। कोई ऐसे फ्रैक्शन वगैरह में आ रहा है? π/3, हाँ ऐसे π/3। तो दीज आर द टू रिजल्ट्स, एक π/2 और एक π/3। दीज आर द टू रिजल्ट्स। यस, now question number 8 is from May June 16 paper 1-1. Solve the equation. Solve the equation. 3 sin square theta 4 cos theta -1। इक्वेशन में दो अलग अलग फंक्शन दिए गए, सिंगल फंक्शन में आना है। cos थीटा तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, लेकिन sin स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा -1। सो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा -1। ये राइट साइड पर आया तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा -4 इक्वल्स टू 0। दो cos की वैल्यूज आएंगी, बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए। 2/3 -2, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी।
और यहां से ये रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें, आंसर आएगा ही नहीं। कॉस पॉजिटिव है, कहाँ होगा, फर्स्ट में और लास्ट में। बेसिक एंगल कितना है, कैलकुलेटर इन डिग्रीज, कैलकुलेटर इन डिग्रीज 53.5, 48.1, 48.2। देयरफॉर एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, तो पहला एंगल क्या आया 48.2 और दूसरा एंगल क्या आएगा 360 माइनस 48.2, 311.8। These are the results. A 4-marked question. Okay, students, now question number 9. Question number 9 is from May June 16, paper 1-1. पहले क्या कहा गया, state the range. State the range of the function. Now, range याद रखिएगा बच्चों। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है, स्केचिंग से आप लोग सीख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट रेंज, लेकिन मैं एक और यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूं। रेंज किसके इक्वल होता है बच्चों, c प्लस ए और c माइनस ए, c प्लस ए और c माइनस ए। और इसमें a साइन बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखते हैं हम, स्केचिंग में डिस्कशन हुआ था हमारा। तो अब आप देखिए क्या मतलब, मेन एक्सेस कितना है -1, मेन एक्सेस कितना है -1, एम्पलीट्यूड कितना है 4, तो -1 -4, और यहां पर c क्या है -1 +4, तो जनाब कितना हो गया, -5 से लेकर कहां तक जाएंगे हम, 3 तक। तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन आ गई। कोई कंफ्यूजन, अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, राइट। आगे आइए जनाब, व्हाट वी हैव टू डू इन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या मतलब, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां से टकराए। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, या एफ एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन x -1। कहा गया वो पॉइंट निकालिए जहां पर ये x एक्सिस को टकराए और y एक्सिस को टकराए। तो जनाब अगर x एक्सिस को टकराएगा, ऑर्डर, अगर x एक्सिस को टकराएगा तो y 0 और y एक्सिस को टकराएगा तो x 0। तो जनाब अगर मैं x को 0 रखता हूं तो साइन 0, 4 साइन 0 -1, साइन 0 इज 0, तो -1 आया, ठीक हो गया। और y की जगह अगर 0 रखूं मैं तो 0 इक्वल्स टू 4 साइन x -1, तो 4 साइन x equals to 1 and sin x equals to 1/4. Now what is the answer, sin inverse of 1/4। हमने एक ही आंसर निकालना है क्योंकि हमें सिर्फ -90 से +90 तक रहना है, राइट। क्या 14.4, ठीक हो गया। तो पता ये चला, एक कोऑर्डिनेट आया 14.4, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया 0, -1। दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टकरा रहा है, ठीक हो गया। वेयर दिस वन, एक्स को 0 रखा, हाँ क्योंकि एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है ना, क्या लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस को कहां से टकराएगा और एक्स एक्सिस को कहां से टकराएगा। तो जब एक्स को 0 रखा तो इट मींस वाई इंटरसेप्ट आ गया आंसर में, और जब y को 0 रखा तो इट मींस x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक हो गया। तो 0 तो हमने खुद रखा है क्योंकि एक्सिस को टकराना है हमें ना। मजीद आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं, स्केच द ग्राफ। इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू स्केच द ग्राफ, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, -90 से 90 या -π/2 से π/2 तक। हियर इज π/2, हियर इज -π/2। मैं एक मिस्टेक करूंगा ग्राफ बनाने में, आप लोग देखिएगा और बताइएगा क्या मिस्टेक हो रही है। Now, what is the main axis? Main axis is -1. Main axis is -1. Here it is -1.
और 4 यूनिट अबव -1 + 4 कितना हो गया 3 -4 -5 साइन का कर्व बना रहे हैं फर्स्ट वैल्यू इज एक्सेस देन मैक्सिमम रिवर्स पे आइए मैक्सिमम एक्सेस मिनिमम जनाब ये कर्व बना और ये कर्व एनी कंफ्यूजन एनी मिस्टेक shape of the curve is not correct. This is the mistake. Shape of the curve is not correct. सुनिएगा याद रहे shape of the curve. साइन का कर्व कैसे बनता है बच्चों It's like this. तो ये कैसे बनेगा It's like ये अमूमन मिस्टेक हो जाती है जब भी मैंने मिस्टेक करके दिखाई कि मिस्टेक इंशाल्लाह आप लोग नहीं करेंगे शेप ऑफ द कर्व बहुत मैटर करता है शेप ऑफ द कर्व ऐसा ही होना चाहिए जो कि रियल शेप है साइन का ठीक हो गया अब आइए इन द फोर्थ पार्ट इनवर्स निकालना है आपने तो y इक्वल्स टू 4 sin x -1 4 sin x equals to y plus 1 and sin x equals to y plus 1 over 4 and x equals to sin inverse of x plus 1 over 4 और f inverse of x क्या हो गया sin inverse of अच्छा ये तो y था sin inverse of x plus 1 over 4 अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन अब आप देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स तो सुनिएगा जो डोमेन है और रेंज ये हमें कैलकुलेट करनी है याद रखिएगा इनवर्स की रेंज फंक्शन की डोमेन होती है और फंक्शन की डोमेन क्या दी गई है -π/2 से लेकर π/2 और फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन होगी फंक्शन की रेंज क्या निकाली है -5 से लेकर 3 तक तो ये डोमेन और रेंज भी आपने कैलकुलेट कर ली अच्छा स्टूडेंट्स ये जो सेकंड पार्ट हमने किया इसमें 14.4 का आंसर हमने डिग्रीज में दे दिया तो डिग्रीज लगा दिया और 0.25 दीज आर इन रेडियंस तो और करके हम लिख सकते हैं 0.25, 0 ठीक हो गया यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान में रहे कि डिग्रीज में अगर किसी ने लिख दिया है तो उसको आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे राइट तो हमें सिर्फ रेडियंस में देना है okay students now this is from May June 16 paper 1-2 in the first part we have to find am in terms of x the conditions are given we have to calculate am in terms of x राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है चीजें आपको गिवन दी गई हैं हियर इट इज x here it is x am आपने कैलकुलेट करना है किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है जरा चेक करते हैं अगर हम छोटा राइट एंगल ट्राइंगल देखें AMC अब आप देखिए क्या हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं या इट्स नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट दिस एंगल अगर हम AC कैलकुलेट कर लें क्या कैलकुलेट कर लें AC कैलकुलेट कर लें बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल पिक कर रहे हैं हम और AC पर मैं यूज कर रहा हूं 10 π/3 कैलकुलेटर इन रेडियंस equals to opposite AC over adjacent is 2x what is 10 π/3 √3 तो ये क्या हो गया 2 √3x AC क्या आ गया 2 √3x कोई कंफ्यूजन जब AC कैलकुलेट हो गया तो आप AM कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो AM स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 4 3 are 12 x square so AM square is equals to 13x square and AM is equals to √13
x am is equals to अंडर रूट 13 x, ये हमने इन टर्म्स ऑफ x am कैलकुलेट कर दिया अंडर रूट 13 x। आ रही है बात समझ में? पहले हमने AC कैलकुलेट किया, फिर AC और CM पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर ली, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? नाउ इन द सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? थीटा कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में, थीटा कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में। क्या आना चाहिए? थीटा में tan आना चाहिए, कुछ थीटा में tan का एंगल आना चाहिए, राइट? करते हैं जनाब, थीटा में tan का एंगल किस तरीके से आ सकता है, जरा चेक करते हैं कि हाउ टू फाइंड थीटा। अगर मैं कहूं कि मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज z, लेट्स से दिस इज z, एंगल z में कैलकुलेट कर रहा हूं, tan आना चाहिए, हमारे जहन में क्या है? tan आना चाहिए, तो tan यूज कर रहा हूं मैं, tan z इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट 2 अंडर रूट 3x, कैंसिल आउट, तो tan z क्या हो गया? 1/2 अंडर रूट 3। आ रहे हैं करीब करीब, आ रहे हैं करीब करीब। तो z किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स ऑफ 1/2 अंडर रूट 3, एंगल z आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब बड़ा ट्राइंगल देखिएगा, बड़ा ट्राइंगल देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं एंगल ए किसके इक्वल है? 180 माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, पाई माइनस एंगल बी कितना है? π/3, और एंगल सी कितना है? π/2, पाई माइनस π/2 इज π/2 minus π/3, so it will be 6 LCM, so π/6, एंगल ए कितना आ गया? π/6, तो देयरफॉर थीटा किसके इक्वल हो गया? एंगल ए माइनस जेड, तो π/6 1/6 पाई लिखा जा सकता है, माइनस जेड कितना है? tan इनवर्स ऑफ 1/2 अंडर रूट 3, and this we have to prove. Are you clear? Any confusion?